Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the photoelectric effect and the we can say the dual behavior of electromagnetic radiations. Okay, so the photoelectric effect, as we said, that in 1887, H. Hertz, he performed a very interesting experiment, and in which when a beam of light falls on the certain metals means basically the group 1 metals like potassium, rubidium, and cesium, etc., then um, these that metals ejected electrons, and this phenomena was known as the photoelectric effect. As you can see here, that when a source of light like sunlight falls on a metal surface, this is a bit of metal surface and it is present inside a tube which is further connected to the battery and the emitter, and when detector is also connected with it, then once the source of light falls on a metal surface, then as you can see that detector is observing that electrons flow from this metal surface towards it, and in emitter also there were deflection shows. So from this we come up to the, or Hertz come up to the conclusion that whenever a source of light falls on the metal surface, then there was a ejection of electrons. So the result or the conclusion observed after this experiment, that was that the electrons was ejected from the metal surface as immediately as the beam of light strikes the surface of metal. Means there is no time gap in between striking of light and ejection of electron. This was the first conclusion. Second, as more the intensity, or we can say the brightness of light, more number of electrons ejected from the metal surface. और थर्ड ये हमने ऑब्जर्व किया वहां से कि हर मेटल के लिए देयर वाज अ specific, or we can say the characteristic minimum frequency which was known as nu naught, जिसको कि threshold frequency भी कहा जाता है. Below this frequency photoelectric effect was not observed, and usually the frequency should be more than the threshold frequency. ठीक है, तो आपके इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए. अगर इससे कम हुई अगर मेटल की फ्रीक्वेंसी, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द पोटेशियम metal threshold frequency is 5 into 10 raised to the power 14 hertz. तो बच्चे ये एक पॉइंट उन्होंने करा था, और ऐसे ही अगर उन्होंने कहा था कि अगर इससे कम की फ्रीक्वेंसी की आपका इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर आएगी तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेशियम मेटल से नहीं हो पाएगा. ठीक है, so that is about all photoelectric effect. और आइंस्टाइन जो थे, that was also able to explain photoelectric effect using Planck quantum theory of electromagnetic radiation as a starting point. Shining a beam of light onto a metal surface can be viewed as shooting a beam of particles, that means the photons. मतलब कहने का ये है कि जब sufficient energy के photons जो थे, when they strike on the electrons in the atom of a metal, तो होता क्या था कि जो ये sufficient energy के जो आपके फोटोन्स हैं, वो जो है that is going to be transfer their energy instantaneously to the electron during the collision, and the electron is ejected. फिर उसके बाद जो था, यहाँ पर से जो थे वो क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते थे.
ठीक है. So the electron is ejected without any time lag or delay. Greater the energy, जितनी ज़्यादा energy possessed by the photons होगी, greater the energy possessed by the photons, that greater will be the transfer of energy to the electron and greater the kinetic energy of ejected electron. ठीक है. तो दूसरे वर्ड में हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is proportional to the frequency of electromagnetic radiation. ठीक है. Clear? So this is all about your photoelectric effect. Next बेटा अब वही आ जाता है quantized electron energy level. तो आपको मालूम ही होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे थ्रू विच इट पासेस, एंड एज अ रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, डेविएटेड या refracted from its original path as it passes from one medium to another one. तो simply जब एक white light को आप ग्लास स्पेक्ट्रम से, ये बेटा ये जा रही है हमारी white light, ठीक है, white light को जब ग्लास प्रिज्म से पास कराया जाता है, then there is a what, there is a deviation of light, and in this deviation we obtained a series of color bands which is known as spectrum. ठीक है, इसमें हम क्या मिलता है, सीरीज ऑफ बैंड्स मिलते हैं जिसे कि हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. एंड दिस लाइट ऑफ रेड कलर जो होता है, light of a red color, this is a red one color that has longest wavelength and it is deviated the least one. सबसे कम deviation किसमें होता है, रेड कलर में. जबकि violet light जो होती है which is having the shortest wavelength, it is deviated the most. And the spectrum of light, white light, that we can see ranges कहाँ से कहाँ तक, from violet to blue, violet to red, that is at 7.5 into 10 raised to the power 14 hertz to red which is having 4 into 10 raised to the power 14 hertz. ऐसे स्पेक्ट्रम को अगर हमें वो कॉन्टिन्यूटी में मिल रहा है, बिना गैप के मिल रहा है, दैट इज नोन एज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कॉन्टिन्यूअस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हर एक लाइट रेडिएशन एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, मर्ज कर रही है. लाइक वॉयलेट मर्जेस इनटू इंडिगो, इंडिगो मर्जेस इनटू ब्लू एंड सो ऑन. ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे इतना. सो बच्चे यहाँ पर ये मतलब हमारा कहने का है कि इसको हम कॉन्टिन्यूअस या कलर्ड बैंड्स को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो स्पेक्ट्रम हमें एक के ऊपर एक या मर्जिंग में मिले उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है. सो विद we can say when electromagnetic radiation interact with matter या atom या molecule, then they may absorb energy and reach to a higher energy state. With higher energy, these are in basically in unstable state. For returning to their normal state, energy state, atoms and molecules emit radiations in various region of electromagnetic spectrum. ठीक है. So from here we can say that जैसा कि ये अभी मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्ट जो होगा वो क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और फिर हायर से नॉर्मल स्टेट में आने के लिए वो क्या करेगा, दे एमिट रेडिएशन करेंगे. सिंपल वन बच्चे. फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन which is emitted by a substance which has absorbed energy is called emission spectrum. ठीक है. और line emission spectra जो होता है that is are of greater interest in the study of electronic structure. Basically electronic structure के अंदर हम लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं. हर एलिमेंट का एक यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है. The characteristics line in atom spectra that is used in chemical analysis to find out unknown atoms as or similarly as the fingerprints which are used to identify people.
ठीक है बेटा। तो जैसे हमारे अपने अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ऐसे ही हर एलिमेंट के एटम के अपनी अपनी लाइन स्पेक्ट्रा होती है, और द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ लाइंस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा of atoms of known element with the line from unknown sample quickly establish identity of matter. German chemist जो रॉबर्ट बंसन थे, he was the first one to investigate या who used line spectra to identify the elements, जैसे कि रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम were discovered when their minerals were analyzed by spectroscopic methods. ठीक है। अब आ जाती है बात लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ बेसिकली हाइड्रोजन की बेटा। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि आपका द बेसिकली क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो एटम्स का गैस फेज के अंदर continuous spread of wavelength नहीं दिखाता। Instead of that, emission spectra जो है they emit light only at specific wavelengths with dark spaces between them, and such type of a spectra are called line spectra or atomic spectra, क्योंकि जो इसमें radiations emit होती हैं that is identified by the appearance of bright lines in the spectra. Okay, now line spectra of hydrogen. So when an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, then hydrogen molecule dissociate and energetically excited hydrogen atoms emit electromagnetic radiation of discrete frequencies. ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है that consists of several series of lines named after their discoveries, like Balmer series, who showed in 1885 on the basis of experimental observations that if spectral lines, अगर इनको हम वेव नंबर की टर्म्स में क्या करें, एक्सप्रेस करें, तो विजिबल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है वो इस फॉर्मूले को क्या करेगा बेटा, फॉलो अप करेगा, जहां पर कि n जो है ये n, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर है एंड इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 3। ऐसे ही जोनस रिदबर्ग ने दिया था, उन्होंने भी ऑल सीरीज ऑफ लाइन दी थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, और उनका फॉर्मूला ये आया था दैट न्यू बार इज इक्वल्स टू 109,677 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहाँ पे कि n1 की वैल्यू जो थी 1 2 थी, और n2 जो था वो क्या था, n1 प्लस 1 या n1 plus 2 or so on, and this value which is a constant is known as a Rydberg constant for hydrogen. So these people establish a relationship basically for wave number, ठीक है, वेव नंबर और स्पेक्ट्रल लाइंस का n इंटीजर्स नंबर, ठीक है, तो उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया, एंड then this is basically the line spectra of hydrogen as you can see, कि अगर इसमें आप देखें तो ये है आपका atomic emission, the first one figure is of atomic emission, जिसके अंदर बेटा जो है एक excited hydrogen sample लिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन एटम या कोई भी और एलिमेंट लिया, उसको पास कराया गया किससे, एक प्रिज्म से, ठीक है, और उसको फिर किस में कर दिया गया, सेपरेट किया गया इनटू द डिफरेंट, यहाँ पर किस पे, डिस्क्रीट वेवलेंथ्स में, और क्योंकि इसमें क्या हुई हैं, रेडिएशंस एमिट हुई हैं, है ना, तो किसके ऊपर, एक रिकॉर्डिंग या फिल्म के ऊपर, रिकॉर्डिंग फिल्म या डिटेक्टर के ऊपर ऑफ सेपरेट वेवलेंथ्स, तो इसको हमने क्या कहा, स्पेक्ट्रम कहा, एंड एनी सैंपल ऑफ रीजनेबल साइज विच कंटेन्स एनर्मस नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो वो एक टाइम पर जो है सिंगल एटम जो होगा वो एक एक्साइटेड स्टेट दिखाएगा एक टाइम पर, और अगर कलेक्शन ऑफ एटम्स हुए तो वो एक्साइटेड, बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट्स दिखाएंगे इसके अंदर। Fine. So the light which is emitted as these atoms fall to lower energy state, that is responsible
फॉर दिस एमिशन स्पेक्ट्रम। एज यू कैन सी ये डार्क बैंड्स है और इनके ऊपर ब्राइट लाइंस है, तो ये हमारा ऑब्टेन्ड हुआ। सिमिलरली दूसरा आ जाता है हमारा, दिस इज फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या है, एटॉमिक आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के लिए है, और इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें हुआ कैसे, जब व्हाइट लाइट को पास किया गया बेटा, ठीक है, थ्रू अनएक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन, आपका किसके साथ, व्हाइट लाइट थी और उसको अनएक्साइटेड, ये देखो इस एब्जॉर्बिंग सैंपल इज नथिंग बट दिस इज अ हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन दे हैव यूज्ड एंड विच इज अनएक्साइटेड वन। ठीक, तो इससे पास किया गया और फिर इसको, इस व्हाइट लाइट को स्लिट और प्रिज्म से पास किया गया, देन बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग समथिंग, एंड यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट थी उसकी इंटेंसिटी भी क्या थी, कम थी, एट द सेम वेवलेंथ एज आर एमिटेड इन दिस वन, फिगर नंबर ए। सो इसमें हमें क्या मिला, इसके अंदर हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिला। ये कैसा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये जो था बेटा, ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रम था। ये देखिए इसमें जो लाइंस थी वो ब्राइट थी, और ये जो था ये फोटोग्राफिक नेगेटिव था, किसका, एमिशन स्पेक्ट्रम के। इन लाइंस के बेसिस पे रिडबर्ग या बामर ने क्या निकाले थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए वेव नंबर के रिलेशनशिप्स निकाले थे, फाइंड आउट किए थे। ओके, सो हमने आज इसकी बात की कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो इट इज द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ द वेवलेंथ्स व्हिच इज अब्सॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय एन एलिमेंट। इसमें होता क्या है कि वेवलेंथ जो है वो वेल सेपरेटेड होंगी या डिस्क्रीट होंगी, अलग अलग होंगी। वेवलेंथ एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की क्या होंगी, डिफर करेंगी। एटम जो है वो कुछ ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज के साथ, एज इट इज शोन। ये देखिए ये बैंड बन रहा है आपका और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिसोशिएट होगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिसोशिएट कर देगा इनटू एक्साइटेड एटम, और विच कैन एमिट लाइट इनटू 4 वेवलेंथ एज इट इज शोन इन द फिगर यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा और बोर एटम की रिलेशनशिप अगर आप यहाँ देखो तो डिफरेंट, हर एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग स्पेक्ट्रा दिखाते हैं। जैसे ये एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रा है, ये दूसरे का है, ये थर्ड वन का है। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है एटॉमिक, ये जो है आपका नियॉन का है, और ये वाला जो है आपका वो मैग्नीशियम का है। सो ऑल दीज थ्री इज शोइंग द डिफरेंट wavelengths and different bands, or we can say the spectra in their atomic spectrum, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में देखिए ये वेवलेंथ के ऊपर देखो, ये 5000 वेवलेंथ है, ये 6000 है, ये 7000 है, तो सबके बैंड्स जो हैं वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। फाइन, सो इसको लैब में किया जा सकता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर वन या स्पेसिफिक एलिमेंट। इसी तरीके से बेटा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हुआ है आपका। तो डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं वो इस तरीके से, मैंने जैसे आपको बताया कि n की वैल्यू जो चेंज होती है, लाइक n जो है वो 1 यहाँ पर है, ये लिमन सीरीज में आया था, और ये जनरली अल्ट्रावायलेट रेज आपकी दिखाती हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट बामर, ये देखिए ये रेड रेडिएशन है, ये ग्रीन है, ये वाली ग्रीन, दिस वन इज फॉर ब्लू एंड दिस वन इज फॉर वॉयलेट वन, ठीक है। तो ये जो थी आपकी एक्साइटेड ग्राउंड लेवल से, अगर आप यहाँ से देखो तो n इज इक्वल टू 6 से कहाँ पर जा रहा है, 1 पे फॉल कर रही है। अगर आप बामर को देखो तो n इज इक्वल टू 6 से और n इज इक्वल टू 2 तक फॉल कर रही है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बामर के बाद पाश्चन जो है, दैट फॉलिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 3 कर रही है। और ये जो है ये हमारी सबसे ऊपर इंफिनिटी है। सो बेटा ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि जब वो हायर से ग्राउंड पे जाता है तो एमिट करता है रेडिएशंस या एनर्जी, और उसका ट्रांजिशन यहाँ पर
हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है। So next is Bohr model for hydrogen. So that Bohr model for hydrogen इन्हीं postulates पे डिपेंड था कि इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम का है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस और एनर्जी के साथ मूव करता है। इन पाथ्स को ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट्स या एनर्जी स्टेट्स कहा जाता है, एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो है वो चेंज डू नॉट चेंज विद टाइम होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट में मूव करते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और एमिट करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट with the emission of energy, released of energy, whereas energy do not change in a continuous manner. फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन की एब्जॉर्ब्ड और emitted होगी, that always occur in between two stationary states and it differs in energy by delta E. So nu is equals to delta E upon H, or we can say it is equals to E2 minus E1, where E2 is the higher energy level, E1 is the lower energy level, and this expression is known as the Bohr frequency rule. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो क्वांटाइज्ड होता है। angular momentum is mvr, which is equals to nh upon 2 pi, where m is mass of electron, v is velocity, r is radius, or electron move only in these orbits with the angular momentum, which is integral multiple of h by 2 pi। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोग अपनी बुक से पढ़ेंगे। थैंक यू।